بندہ حاضر ہوا ہے. کلمات تشکر یعنی کسی کا شکر ادا کرنا، شکر کے الفاظ بولنا، اسے کہتے ہیں کلمات تشکر. اور شکر کی اہمیت ہے، اور بعض دفعہ بہت ضروری بھی ہوتا ہے کہ شکر ادا کرنا. قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اور زیادتی عطا کروں گا. اور اس کے بعد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب سخت ترین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اپنے بندوں پر کئی درجہ محبت کرنے والا، کرم کرنے والا، نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا سنہرا اور بہترین موقع عطا کیا کہ جلسے میں شریک ہوئے، جلسے میں معزز علماء کرام ہیں اور طلباء طالبات جو معصوم ہیں، اور نوجوان بچے بھی ہیں، اور مہمانان کرام بھی ہیں، اور اس میں والدین اور سرپرست بھی ہیں، بچوں کے پیرنٹس بھی ہیں. اور عموماً مدرسوں کے جلسوں میں ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پیرنٹس میں والدہ، امی یہ زیادہ آتے ہیں، اور مرد جو رہتے ہیں یعنی والد صاحب یہ عموماً جلسوں میں شرکت نہیں کرتے. عموماً مدارس کا ایک المیہ ہے، اس کے بارے میں جو ہے فکر کرنا ہے. اور بچے ضرور سے جلسے کے دن اور جلسے میں اپنے امی کو اور ابا کو ضرور جلسے میں لانے کی کوشش کرنا. اگلے مرتبہ کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا قیمتی اور بہترین موقع عطا کیا ہے. اور اس کے بعد میں آئے ہوئے مہمانان کرام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ خصوصاً مولانا مفتی شاہجہاں صاحب دامت برکاتہ اور پھر مولانا عبدالرحمٰن صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے ہمارے واسطے وقت دیے ہیں تھوڑا سا وقت، کیونکہ وقت آج کے زمانے میں بڑا قیمتی ہے، بلکہ پہلے سے بھی، لیکن عموماً آج کے زمانے میں وقت میں بے برکتی ہو گئی ہے. کسی بھی کام میں وقت بس نہیں ہوتا، کسی بھی کام میں لگے وقت بس نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ جن کی زندگیوں میں برکتیں دیا ہے ان کی زندگی میں ان کے وقت میں برکت ہے، ورنہ عموماً آدمی ہر طرح سے آدمی ایک دوسرے کو ساتھ دینے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے. کسی سے پیسہ پوچھو ضرورت پر تو پیسہ دینے الحمدللہ تیار ہوتے ہیں، اور کوئی کسی سے مشورہ پوچھے مشورہ، اور مشورہ تو ایسی چیز ہے الحمدللہ بعض دفعہ بغیر پوچھے کے بھی مشورے مل جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کئی اعتبار سے کئی طریقوں سے ساتھ دیتے ہیں، لیکن وقت مانگے تو وقت دینا مشکل ہوتا ہے. الحمدللہ وقت دیے ہیں، اور سرپرست اور بچوں کے والدین پیرنٹس بھی جو وقت دیے ہیں تو ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کا دن ہوتا ہے. 6 دن عموماً سرپرست بزی ہوتے ہیں بچوں کی اسکول بھیجنے کے واسطے، ان کی تیاری، ان کا ناشتہ اور ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا اس طریقے سے. تو اتوار کا ایک دن آرام کا، یا پھر کہیں اپنے ماں باپ کے جانے کا، یا بھائیوں کے پاس جانے کا، یا پھر کوئی اور تقاضے ہوتے ہیں، یا شادی وغیرہ کے تقاضے ہوتے ہیں، اس طریقے سے بے شمار تقاضے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی کچھ والدین سرپرست وقت نکال کر اور اس مجلس کو اور اس جلسے کو اہمیت دیتے ہوئے آئے ہیں، تو ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر اسی طریقے سے بچوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ دیر سے الحمدللہ ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیٹھے رہے، باتوں کو توجہ سے سنتے رہے، اور اپنے 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 پروگراموں کو پیش کرتے رہے. کوئی نعت ہے، کوئی قرات ہے، کوئی بیان ہے، کوئی دعائیں، سنتیں، حدیثیں، کلمے، اس طریقے سے ساری چیزیں پیش کی ہیں. اور اس کے پیچھے بڑی محنتیں بھی ہوئی ہیں. کبھی وقت پر کھانا
आगे पीछे कर लिए, कभी मदरसे से देर से जाना हुआ, कभी खाली वक्त में भी मदरसे को आना हुआ, और सबक के साथ और इम्तिहान के वास्ते रिवीजन आमुख्ता याद करते हुए, फिर जलसे की चीज़ों की तैयारी करते हुए, इस तरीके से बहुत मेहनत की है। अल्लाह आप लोगों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और तो तलबा का भी जो है मैं शुक्र अदा करता हूँ। और इसी तरीके से इस मजलिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बतों भरी मजलिस है। यहाँ पर हम सब जो है मोहब्बतों पर जमा हुए हैं, कोई और दुनियावी गर्ज़ मकसद हमारा यहाँ पर नहीं है। दीन की निस्बत पर, अल्लाह रसूल की बातों पर और अल्लाह की मोहब्बत पर हमें यहाँ पर जमा हुए हैं। कि हमारा एक दूसरे के साथ मिलना बैठना ये मोहब्बतों की अलामत है। बच्चों का असातिज़ा से मोहब्बत अक़ीदत है, और असातिज़ा का बच्चों से मोहब्बत है। और फिर इसी तरीके से इन उलमाए दीन का जलसे की निस्बत से यहाँ पर आना, और मेहमानों का यहाँ पर आना, और ज़िम्मेदारों का पेरेंट्स के साथ, वालिदैन और सरपरस्त के साथ, और सरपरस्त का मदरसे वालों के साथ, और खुसूसन मदरसे की निस्बत से एक दूसरे से मोहब्बतें होती हैं। तो इन मोहब्बतों की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यहाँ पर जोड़ा है और हमें बिठाया है, और हमें एक दूसरे की बात सुनने के वास्ते अल्लाह जो हमें मौका दिया है। तो ये मोहब्बतों भरी महफिल है। तो मैंने सबका शुक्र अदा करते हुए, और इसी तरीके से किसी के एजाज़ में, इकराम करने में कमी बेशी हुई हो, जैसा कि जगह की किल्लत का मसला है, यहाँ पर जगह की तंगी है, कि हमारा तो इरादा था कि बहुत सारे मेहमानों को बुलाएं, खुसूसन हमारे ख़ानदान वालों में, और फिर इसी तरीके से महल्ले में भी बहुत सारे लोगों को, और बस्ती से भी बहुत सारे लोगों को जलसे में जोड़ने की, बुलाने की जो है हमें बहुत अरमान तमन्ना है, घर वालों की सबकी तमन्ना थी। लेकिन जगह की दिक्कत है, कमी है, किल्लत है, यहाँ पर सारे मेहमानों को जोड़ नहीं सकते, और बड़ा से इंतज़ाम करने में उसमें भी थोड़ी दुश्वारी थी। तो इस वजह से इसी मुख्तसर जगह में क़नात को इख्तियार करते हुए इस छोटे से प्रोग्राम का जो है इंतज़ाम किए हैं। और इसमें साथ देने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चंद दोस्त अहबाब हैं, अल्लाह उनको भी जो जज़ा खैर अता फरमाए। और खुसूसन मदरसे के नौजवान जो तलबा थे, वो भी तकरीबन पिछले चंद दिनों से, 2-4 दिनों से मुस्तकिल जलसे की तैयारी के वास्ते, बच्चों के इनामात को तकसीम करने में, उसे बांटने में, उसे कवर पैकिंग करने में, और भी उसके अलावा अपना बहुत सारा वक्त दिया। अपने ट्यूशनों का वक्त यहाँ फारिग करके, अपने स्कूल कॉलेज का एक्स्ट्रा वक्त फारिग करके, यहाँ पर अपने अम्मी अब्बा से वक्त लेकर, अपने खेल कूद के वक्त को छोड़कर यहाँ पर जलसे की कामयाबी के वास्ते बहुत जो है मेहनत की है, मशक्क़त की है। तो उसमें उनको भी तकलीफ हुई, और मेहमानों के आने में भी, बिठाने में भी, और खुसूसन मस्तूरात कि जिनको मस्जिद में बिठाने के वास्ते जगह की दिक्कत की वजह से नीचे बिठाए थे, लेकिन और करंट भी चले गया, तो जिसकी वजह से आवाज़ भी पूरी तरीके से वहाँ पहुँच नहीं सकी है। तो औरतों को भी जो बेहद तकलीफ हुई है, तो उसकी भी जो है माफ़ी मांगते हुए, और साथ ही साथ एक मदरसे का एक छोटा सा तारुफ भी आप लोगों के सामने कराना जो है कराना चाहता हूँ। मदरसे का जो नाम है मदरसे अजीज़िया। उम्मन हमारे बड़ों का, बुज़ुर्गों का एक मामूल है कि अपने बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब करते हुए मदरसे का, किसी इदारे का नाम रखते हैं। तो इसी तरीके से पिछले 5 साल पहले, तकरीबन 2017 में 5-6 बच्चों के ज़रिए से ये मकतब शुरू किए थे। और मदरसे के जो उस्ताद हैं, मुख्तमिम हैं, हफीज़ उमर और मोहम्मद आदिल मौलाना, तो इन दोनों के जो वालिद साहब हैं, तो उनकी बड़ी मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह मकतब जो है वजूद में आया। और मदरसे के वास्ते बोलकर ये जगह, एक पोर्शन जो है पूरा खाली रखे हैं। ये चाहते तो अपनी घर की ज़रूरत पर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपनी आखिरत बनाने के वास्ते, और महल्ले के जो नौनिहाल जो बच्चे हैं उनकी दीनी फिक्र करते हुए इस जगह को ख़ास कर दिए कि इस जगह में इंशाअल्लाह मकतब चलता रहेगा। तो तकरीबन पिछले 3.5 साल पहले इनके वालिद साहब का शुक्र का जो इंतकाल हुआ, महल्ले वाले भी जानते हैं और उलमा भी जो है जानते हैं, और रिश्ते में मेरे मामू भी हैं वो। और मदरसे का जो नाम रखा गया है मेरे नाना जान की निस्बत से, यानी अब्दुल अजीज़ उनका नाम था, तो उनकी निस्बत से मौसूम किए हैं मदरसे को जो है मौसूम किए हैं, यानी नाम रखे हैं। और हाफिज़ उमर और मोहम्मद आदिल, ये जो 2 भाई हैं, इनके दादा जान की निस्बत से
हमारे नाना हैं, इनके दादा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, सुन्नतों वाली ज़िंदगी गुजारे, अपने परहेजगारी वाली ज़िंदगी गुजारे। हाफिज़ आलिम तो नहीं थे, लेकिन पिछले चंद सालों पहले यानी तकरीबन 40 साल हो गया उनका इंतकाल होकर, तो उससे पहले चंद सालों तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दीन का काम, खुसूसन इमामत का काम अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। ज़माने में उलमा और हुफ़्फ़ाज़ वग़ैरह नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह ने थोड़ी सी फिक्र दी थी और थोड़े से चंद सूरे हमें तो नहीं मालूम कि जिस तरीके से वो पढ़ते थे, उन ज़माने में लोगों के दरमियान में मकबूल हो गए, लोग सब मिलकर उनको इमाम बना दिए। तिजारत के वास्ते जाते थे तज्जो पर पल्ली, नमाज के वास्ते मस्जिद जाते थे, मुसल्ली होते थे और इमाम नहीं होते थे, मुअज्जिन नहीं होते थे, तो खुद जाकर अज़ान देते थे, नमाजें पढ़ते थे। तो इनके नमाजें पढ़ने और वक्त मस्जिद में लगाने की इस शौक़ को देखकर गाँव के सब लोग मिलकर उनको इमाम बना दिए। तो फिर वहाँ इमामत किए, कुनूर में इमामत किए, फिर चन्ने में भी इमामत किए। फिर उसके बाद जो है अल्लाह के प्यारे हुए 60 पर 3 साल की उम्र में, जिस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ 63 साल की उम्र में, उसी उम्र में जो है उनका इंतकाल हुआ। और हमारे मामू यानी इनके वालिद साहब जो है वो बताते थे कि जिस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के अंदर यानी 2-3 सुन्नतें ऐसी थी जो इनके साथ भी यानी हमारे नाना जान के साथ भी वैसी सुन्नतें अता हुई, यानी फ़ख्र फाक़ा, इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें। और इंतकाल होने से पहले अपने सारे बच्चों को वसीयत और नसीहत करते हुए वे इस दुनिया से गए हैं, तो उनके नाम से जो है ये मदरसे का नाम है मंसूब किए हैं मदरसे अजीज़िया कहकर। और खुद इनके वालिद साहब भी जो है यानी शौकत अली भाई, वो भी इंतकाल से पहले अपने बच्चों को वसीयत किए हैं, ताकीद किए हैं कि मेरे मरने के बाद भी किसी भी हाल में ये मदरसा रुकना नहीं है, ख़त्म नहीं होना है, इसे मुस्तकिल चलाते रहना है। ये फ़िक्र की और वसीयत भी किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी वसीयत को, फ़िक्र को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे जो है मदरसे को चला रहे हैं। और इस महल्ले के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे को अक़ीदत की निगाहों से देखने वाले भी बहुत सारे हैं, ज़ाहिरन हमें जहाँ तक मालूम है। लिहाजा मदरसे का एक छोटा सा तारुफ है, और फिर ये मदरसा शहर के उलमा खुसूसन अब्दुल मौलाना की निगरानी, और फिर अब्दुल सुभान हज़रत जो 1 साल पहले हज़रत का जो इंतकाल हुआ था, तो हज़रत की सरपरस्ती में भी जो मदरसा चलता था। तो बहरहाल बहुत सारे उलमा की निगरानी सरपरस्ती है, ख़ानदान में भी बहुत सारे उलमा है, उनकी भी सरपरस्ती जो है मदरसे के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह चलती है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह तबारक व तआला इन छोटी छोटी मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए। और ये जो मेहनत दीन का जो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिग़लाइयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई जो है मिलकर कर रहे हैं, यानी हफ्ते में, महीने में, किसी से भी बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का चंदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चों का जो फ़ीस होती है उसी फ़ीस के ज़रिए से इनकी तनख्वाहें भी जो पूरी होती हैं। कमी होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिला शिकवा भी नहीं है, जो कुछ है उसी पर इक्तिफा करते हुए मदरसे को चला रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कभी इस तरीके से जैसा कभी जलसे का मौका है, बच्चों के इनामात का मौका है, तो उस मौके पर कोई 2-4 अहले खैर वगैरह जो है ताउन कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके देने को, ताउन करने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। दुनिया में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतर निअमल बदल अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए और खुलूस और तक़वा अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों को